Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How's everyone? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. By Allah's grace, we all are, alhamdulillah. Alhamdulillah. Actually, How आज about you? Alhamdulillah. Yeah, वो थोड़ा सा हॉलिडे के वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे था, but I didn't want to cancel. There are only few sessions left and I want to complete it. So इस वजह से I said, come what may, bi'idhnillah, we will conduct the classes because we're not going anywhere and it's just a matter of 45 minutes. So let's do it. There are a few more people to join in, but I think I will start. As it is, we have the recording, so that shouldn't be a problem. ठीक है? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. We had discussed about how the Tabuk expedition and the other small incidents that were happening, और जो ये Byzantines के साथ जो war की preparation चल रही थी, we will discuss in length about that now. So today is the 58th session of the Sealed Nectar, Ar-Rahiq al-Makhtum, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Particular news about the Byzantine and Ghassanid preparations for war. The immense danger that was threatening the life of the Muslims was related to them by the Nabateans, who brought cooking oil from Asham to Medina. जो immense danger जो अभी चल रहा था Muslims के ऊपर, वो Nabateans के तरफ से था, जो कि cooking oil लेते थे अशाम से मदीना तक. They related to them the news about Heraclius' preparations and the equipment of an enormous army that numbered in excess of 40,000 fighters. Along with them were the allied tribes of Lakham, Judham and other tribes. अभी ये जो Heraclius Byzantine की जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा इनॉर्मस थी, यानी ऑलमोस्ट 40,000 फाइटर्स थे. इसके अलावा उनके साथ दूसरे भी ट्राइब्स जो थे वो उनके साथ जुड़ रहे थे, ट्राइब्स ऑफ लखम, जुधाम एंड अदर ट्राइब्स. They also related to them that the advance force had already reached Al-Balqa, यानी अभी जो ये फोर्सेस हैं ये बढ़ रही हैं. तो actually thank you Siraj, it is the 59th session. So force जो है वो अल-बल्का में पहुंच चुकी है. Thus this was a grave situation that the Muslims faced. This situation was aggravated by other serious factors such as hot weather, drought and the rough and rugged distance they had to cover in case they decided to encounter the imminent danger. तो अभी ये जो है सिचुएशन थोड़ी सीरियस होती जा रही थी, और दूसरे फैक्टर्स क्या थे? एक तो गर्मी का सीजन, वेदर हॉट था, उसके बाद ड्रॉट, सूखा पड़ा हुआ था, और रफ और रगेड डिस्टेंस जो था जो उनको कवर करना था. The understanding and estimation of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam regarding the situation and its development was more precise and accurate than any others. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो estimation है और जो understanding है, जो calculation है about the situation and the development और सारा कुछ, वो जो है बहुत माशाल्लाह precise और accurate थी in comparison to others. ये हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशंस में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से as a military strategist उनकी जो कैलकुलेशन होती थी, उनका जो अंदाजा होता था, उनकी जो फार साइटेडनेस थी, वो मच बेटर एंड एक्यूरेट थी. He believed that if he delayed or remained passive concerning the situation, then it might enable the Byzantines to pass through the Islamic controlled provinces or to reach as far as Medina. This would leave the most negative impression of Islam as well as their military credibility. उन्होंने सोचा कि अगर वो पैसिव रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये होगा कि ये लोग जो हैं, बाइजेंटाइन की जो आर्मी है वो पूरा इस्लामिक कंट्रोल प्रोविंस को गुजरते हुए मदीना तक पहुंच जाएगी अनकरीब, और इसका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होगा इस्लाम के ऊपर भी और उसकी मिलिट्री क्रेडिबिलिटी को भी. यानी you have to take, there has to be a counter action, reaction to any of the action, right? So if you are very passive and you are dormant, then that has a negative implications. तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को यानी मद्देनजर रखते हुए he started taking steps. The pre-Islamic beliefs and traditions during Al-Jahiliyyah, which were dying at that time due to the strong decisive blow that had been inflicted on it at Hunain, could have returned once again in such an environment. अभी जो जहालिया के ट्रेडिशंस और बिलीव्स थे, जिसको बहुत बड़ा धक्का लगा विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम और जिस तरीके से इन्वेजन एंड विक्ट्री चल रही थी, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि हुनैन में वो सारी चीजें वापस आ जाएं.
The munafiq were conspiring against the Muslims so that they might stab them in the back, whereas the Byzantines would attack them from the front. तो अब ये हो रहा था कि मुनाफिक जो थे वो तो कभी बाज नहीं आने थे, तो वो जो है मुस्लिम नेशन के अगेंस्ट में अपनी जो उनकी षड्यंत्र एंड प्लॉट्स है उसके ऊपर लगे हुए थे, और ये उनका पीछे से बैक स्टैबिंग चल रहा है, ठीक है, मुनाफिक का, और सामने से जो दुश्मन है बाइजेंटाइन वो खड़े हैं अटैक के लिए। यानी आप देखें दोनों तरफ से खतरा किस तरीके से मंडरा रहा है। If such a thing came to light and they succeeded in their evil attempts, then the efforts of the Prophet and his companions to spread Islam would collapse, and their gains, which were the consequences of successive and constant fights and invasions, would be invalidated. यानी अगर ये लोग अपने इवलिश इरादों में कामयाब हो जाते हैं, इधर मुनाफिक्स और दिस बाइजेंटाइंस, अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो इतनी सारी जंगें, इतने सारे इन्वेजन्स, इतने सारी जो स्ट्रगल्स किए हैं इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम नेशन को क्रिएट करने में, वो सब जो है पानी पानी हो जाता. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam realized that all that too well. So, in spite of the hardships and drought that Muslims were suffering from, the Prophet was determined to have the Muslims invade the Byzantines and fight a decisive battle on their own borders. यानी जितनी भी तकलीफें नेचुरल डिजास्टर के थ्रू आ रही थी, गर्मी और सूखा और सारा कुछ सफरिंग्स, स्टिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया हुआ था कि उन्होंने ये बैटल जो है उसको लाजमी करनी है, मुस्लिम्स ने अपनी बॉर्डर्स को सेफगार्ड करना है और दुश्मनों को फेस करना है. ही वाज डिटरमाइंड नॉट टू डिले द मार्च एट ऑल so as to spoil any Roman attempt to approach the Islamic lands. उन्होंने बिल्कुल डिले नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया वो प्लान को. ही वाज very sure and adamant कि इस्लामिक लैंड्स को प्रोटेक्ट करना है और अटैक जरूर करना है. When Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam made his final decision, he ordered his companions to begin preparations for war and send word to the Makkans and the other Arab tribes to do the same. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनल डिसीजन लिया, उन्होंने सहाबास को ऑर्डर किया कि वॉर की तैयारी करो, और मक्कन्स को भी और अदर ट्राइब्स को भी मैसेजेस पहुंचा दिए. It was always the habit of the Prophet to conceal his intention from the people whenever he had to go on a military expedition. However, this time he openly declared his intention of meeting the Byzantines and fighting them. Normally, उनका course of action ऐसे होता था कि he used to conceal his intention. जब भी उनका फाइट का और मिलिट्री एक्सपीडिशन का प्लान बनता था तो वो जो है उसको छुपाया करते थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने खुली आया किया कि ये अटैक करने जा रहे हैं और उन्होंने ओपनली बताया. दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज स्ट्रेटजी. He related the situation to his people so that they would be ready, urging them to fight in the cause of Allah. And one second, girls. He related the situation to these people so that they would be ready, urging them to fight in the cause of Allah Azza wa Jal. It was on this occasion that a part of Surah Bara, chapter number 9, the repentance, was sent down by Allah, urging them to be steadfast. Now, he is openly declaring, openly announcing कि उन्होंने बाइजेंटाइंस के ऊपर अटैक करना है और फाइट करना है, इसलिए कि लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं, उनके अंदर एक नया जोश खरोश हो, और उनको हम अर्ज, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन मकसद ये था कि उनको अर्ज करें कि अल्लाह की खातिर वो ये फाइट करें, ना घबराएं, ना डरे, ना अंडर कॉन्फिडेंट रहें. और इस ओकेजन में फिर वही नाजिल हुई सूरह बारा चैप्टर नंबर 9 द रिपेंटेंस की, जिसमें स्टेडफास्टनेस का जो है उस पे फोर्स किया गया ताकि उनके कदम जो हैं वो डामाडोल ना हो, इस्तिकामत की जो है वो सलाह दी गई थी. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam also urged them to give charity and to spend the best of their fortunes for the cause of Allah. Now, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या-क्या उन लोगों को आइडिया और टिप्स दिए कि वो जो है सदका करें, अल्लाह की राह में अपना बेस्ट फॉर्च्यून्स दें ताकि अल्लाह को हम प्लीज कर सकें और अल्लाह की मदद आए.
No sooner did the Muslims hear the voice of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam urging them to fight against the Byzantines that they rushed to comply with his orders. Subhanallah, देखें आप कितनी भी तकलीफें हो रही हैं, मसलन जो हैं जोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, उनकी तादाद कम है, लेकिन इन सारे हालात में भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अर्ज किया, उन लोगों को कमांड किया, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया, तो वो भागे भागे आ रहे हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे पास है नहीं है, हमारे हालात क्या है, हमारी जाने जाएंगी, हमारा बेस्ट ऑफ माल जाएगा, वो ये नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर कर रहे हैं। इस टाइप का ईमान चाहिए, इस टाइप का हमारा जो कहते हैं ना, द फेथ इन आवर हार्ट शुड बी ऑफ दिस लेवल, कि हम दुनियावी कल क्या होगा आज क्या होगा वो नहीं, तवक्कुल, रिलायंस एंड अतात, इस टाइप की लेवल हमारी हमको डेवलप करनी है, जहां पर हम जो है तरजीह किसको दें, हम तरजीह दें अल्लाह की खातिर, कोई हम जब काम कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अतात कर रहे हैं, हम उसको तरजीह दें। अल्लाह हैज द कमांड, अल्लाह हैज द पावर, सब कुछ को कंट्रोल करने का पावर, सब चीज प्रोवाइड करने का पावर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है। तो हम लोग जो है ना अपने दिमागों को एक्स्ट्रा यूज ना करें ऐसे मामलात में, ऐसे थ्रेशोल्ड में, जब हम ऐसे क्रॉस रोड्स पे आते हैं जहां पर एक रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा होता है और एक रास्ता दुनियावी तरफ जा रहा होता है, ऑलवेज सिलेक्ट द रास्ता दैट गोज टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बिकॉज जब आप कोई भी अपनी प्यारी चीज अल्लाह की खातिर छोड़ते हैं, अल्लाह की खातिर उसको तर्क करते हैं, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल योर आखिरा के मामला एंड दुनियावी मामला इन हिज हैंड्स, एंड वो अल्लाह का प्रॉमिस है। उस चीज को जानते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने कदम को बहुत अच्छी तरह से जमा के चले और हैव complete trust and faith in Allah Azza wa Jal, because Allah Azza wa Jal has the power to do anything and everything. It's just a matter of kun. No sooner did the Muslims hear the voice of Allah's messenger urging them to fight against the Byzantines that they rushed to comply with his orders. They rushed, उन्होंने delay नहीं किया, they rushed to comply with his orders. With great speed they began to prepare for the war. Tribes and groups from everywhere began to pour in Medina, as well as all the Muslims responded positively to invite only those who had weakness in their hearts desired to stay behind. सारे के सारे rush करे, सब immediately they started pouring in Medina और they responded positively. अब इसमें कौन पीछे रह गया था? Only मुनाफिक। अब आप देखें किस तरीके से फिल्टर होता है। I've told you, any time आजमाइश जब आती है, सुब्हानअल्लाह, आजमाइश को हम लोग जो है ना एक गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमने ये देखना चाहिए कि this is an attempt of Allah Azza wa Jal to find out किसके अंदर कितना ईमान है, किसके अंदर कितना दीन है, और उसी में ही आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। नॉर्मल डेज में कहते हैं ना, व्हेन द शिप इज सेलिंग साइलेंटली, तब सेलर की जो है उसकी महारत नहीं हम पहचान सकते, बट व्हेन द स्टॉर्म इज ऑन, that is the point where you will come to know how good the sailor is. उसी तरीके से जब तक अल्लाह ताला हमको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सेहतमंद है, सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, बच्चे एकदम नेक और फरमाबरदार, सब खैरियत है, जब आजमाइश आती है इन टर्म्स ऑफ माली आजमाइश या सेहत को लेकर या किसी भी चीज को लेकर आपके ऊपर आजमाइश आती है, उस वक्त आपका तर्ज अमल क्या है? Are you the one who's complaining? Are you the one who's getting closer to Allah Azza wa Jal? Are you the one जिसका तवक्कुल अल्लाह पे पूरा पूरा भर के है? या are you the one जो अपनी इबादत छोड़ के रोना पिटना, लोगों की मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं? अपने आप का जायजा लें, आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आप उन लोगों में बिलोंग करते हैं जिसका पूरा तवक्कुल अल्लाह पे है और आप असली मोमिन हैं, आप असली मुस्लिम हैं, या आप नौज़ुबिल्लाह आपके अंदर मुनाफिकत की सिफत आपको नजर आ रही है, या आपका दीन जो है वो इधर उधर डामाडोल हो रहा है, कुफर की तरफ जा रहा है, नौज़ुबिल्लाह। Take an assessment of yourself at the time of trials and tribulations, because ये वक्त है जब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, वरना फिर हम तो अच्छे दिनों में सारे अच्छे हैं, सारे खुश हैं। आजमाइश के वक्त आपको हकीकत पता चलती है, कौन आपका सगा दोस्त है, कौन आपके सगे वाले हैं, और कौन आपके सिर्फ पैसे और नाम और फेम और दुनियावी चीज़ों को चिपक के रहते हैं। दिस इज द टाइम टू फिल्टर एंड फाइंड आउट। तो कभी भी किसी भी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस को नेगेटिवली ना देखें। इट इज अ टाइम व्हेन अल्लाह अज़्ज़ा व जल विल टेस्ट यू, एंड वो आपको निखारेंगे और यू विल बी अ बेटर पर्सन, बिकॉज व्हाट वी लर्न थ्रू दिस एक्सपीरियंसेस, what we get is lessons for life, and those lessons will make us into a better person. आपकी जो कुव्वत है ना, आपकी जो ताकत है, सोना तप कर ही सोना बनता है, तब जाके आप निखर के बाहर आते हो। अच्छे दिनों में, नॉर्मल डेज में कोई भी उसमें काबिलियत नहीं है। यू डोंट शो योर एक्सपर्टीज ड्यूरिंग अ नॉर्मल सेलिंग। आपकी एक्सपर्टीज
स्टॉर्म के टाइम पर ही बाहर आती है। तो उसी तरीके से हमने देखा हर एक इन्वेजन, हर एक एक्सपीडिशंस में मुनाफिक विल बी फिल्टर्ड आउट। सिमिलरली यहाँ पर भी जो असल दीन वाले थे, असल ईमान वाले थे, वो समयना व ताना फटाफट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर करते हुए पहुंच गए। लेकिन जिनका वीक ईमान था वो डामाडोल करना, जिसे हम कहते हैं ना एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशन, लेम रीजंस देना शुरू हो गए। Only those who had weakness in their hearts desired to stay behind, except for 3 people who had true faith but did not participate in the invasion. Even the needy and the poor who could not afford a riding animal came to Allah's messenger asking for one so that they would be able to participate in the fight against the Byzantines. Subhanallah. अब मुनाफिक जो थे, वीक हार्ट वाले हट गए। 3 लोग थे जिनका अच्छा ईमान था लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हदीथ अबाउट दिस पीपल। इंशाल्लाह आई होप उसको डिटेल में इधर बताया गया हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट हदीथ। और फिर उसके बाद कुछ लोग जो गरीब थे, पुअर थे, जिनके पास एनिमल भी नहीं था राइडिंग के लिए, वो भी आ गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा कि उन्हें भी पार्टिसिपेट करना है और उनको राइडिंग एनिमल दिया जाए। अब आप देखिए, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मनी एज वेल। अगर आपने दीन इस्लाम को फॉलो करना है, अल्लाह की राह पे चलना है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास इतने पोजेस होने चाहिए मटेरियल्स तभी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुभान अल्लाह। तो इट इज अ मैटर ऑफ हार्ट, ये आपके दिल का मामला है। इट्स अ मैटर ऑफ एन हिडन थिंग इनसाइड योर हार्ट, इन योर सोल, इन योर माइंड। इसमें पैसे की कोई लेना देना नहीं है। तो भले आप गरीब हैं, आपको नेकियों से कोई नहीं रोक सकता। भले आपके पास कोई पैसे नहीं है, आपको इबादत से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरीके से आपने जो भी नेकियां करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मटीरियलिस्टिक स्टेटस, यू कैन स्टिल डू योर बेस्ट। एंड अल्लाह ताला जो है ना, वो जबरदस्त तरीके से हमारे दिलों के राज चाहे हम उसे जाहिर करें या ना करें, ही नोज इट, he knows it inside out. So you just can't fake it. Nobody can fake it, subhanallah. However, he said, there is a verse, reference of Quran, surah number 9, verse number 92. I can find no mounts for you. They turned back with their eyes overflowing with tears of grief that they could not find anything to spend for jihad. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई कैन नॉट फाइंड एनी माउंट्स फॉर यू, हमारे पास नहीं है आपके लिए माउंट्स। और वो लोग जो हैं, उनकी आंखें जो हैं वो गमजदा हो गई और बहने लगे उनके आंसू, बिकॉज जिहाद के लिए वो कुछ भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। The Muslims raised to donate from their wealth and property in support of the expedition. For example, Uthman radiallahu anhu had prepared 200 saddled camels to travel to Asham. अभी जिसके पास या जिसकी इस्तात जैसी थी वो उधर मौजूद हो गए थे। And Uthman radiallahu anhu, as we know, he was alhamdulillah quite well to do. उन्होंने 200 सैडल्ड कैमल जो हैं वो शाम के लिए रवाना करने के लिए वक्फ किए। बट ही प्रेजेंटेड देम ऑल विद 200 ounces ऑफ गोल्ड एज चैरिटी। उसके साथ 200 ounces ऑफ गोल्ड भी उन्होंने दिया एज अ चैरिटी। देन ही ब्रॉट एन एडिशनल 100 सैडल्ड कैमल्स, यानी 200 के अलावा 100 और लाए और 1000 dinars, and gave them all to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who turned over the dinars and said, from this day forth nothing will harm Uthman radiallahu anhu regardless of what he does. यानी उसके अलावा, यानी आप देखें 300 saddled camels, 1000 dinar और 200 ounces of gold. सुभान अल्लाह, that's a huge amount. उन्होंने वक्फ किया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दिनार जो थे उनको वापस किया और फिर उन्होंने और एक इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्रोटेक्टिंग स्टेटमेंट उनके लिए कहा कि आज के बाद से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को कोई भी चीज जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगेन एंड अगेन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु gave until his charity reached 900 camels and 100 horses in addition to the money he gave as a charity. अभी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु रुके नहीं, वो कंटिन्यूसली ही इज एडिंग ऑन टू द चैरिटी। हत्ता के कहां तक पहुंच गया था नंबर, 900 कैमल्स और 100 हॉर्सेस और पैसा, गोल्ड, सब चैरिटी वो करते जा रहे हैं। अब देखिए अभी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, we people have a different attraction of keeping our money और सिक्योरिटी और पैसा और एसेट्स और गोल्ड और ज्वेलरी और मनी, यानी इन सब चीज़ों के ऊपर एक अलग किस्म की अट्रैक्शन और मोहब्बत है हमारे दिलों में। चाहे हम उसको कोई भी नाम दे दें कि हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम हमारे इसके लिए कर रहे हैं, हम हमारी आगे की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। आप देखें आगे जाने वाली चीज़ क्या है और पीछे छोड़ जाने वाली चीज़ क्या है। आगे जाने वाली वही चीज़ है जो हम अपने हयाती में, अपनी ज़िंदगी में,
अल्लाह की खातिर हम सदका कर लें अपने हाथों से, ओके, दैट इज द थिंग दैट विल बी इदनिल्लाह प्रोटेक्ट अस इन द फ्यूचर। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो है हमारी सिक्योरिटी। जो हम पीछे छोड़ जा रहे हैं हमारे डिपेंडेंट्स के लिए, आई एम नॉट सेइंग वाइप इट आउट कंप्लीटली, उसका भी एक परसेंटेज है, ठीक है, अपने डिपेंडेंट्स के लिए वो एक परसेंटेज छोड़ने के अलावा, अपनी सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा छोड़ने के अलावा जितना कुछ बाकी है, एक्सेस है, अपनी हयाती में मुसलसल करते जाएं। और ये चीज़ मैं हमेशा, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर इनटू बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपना खुद का जो अपना काम काज उनका चलता है, या वो सैलरी बेस्ड है, या उनकी सेविंग्स उनके पास है, उसका एक परसेंटेज निकाल के अपने हाथ से एक मुसलसल तरीके से आप देते जाएं। 10% to 20% ऑफ वॉट एवर यू हैव सेव्ड, उसको निकाल के स्ट्रेट सदका अपने हाथ से करते जाएं और मुसलसल करें, यानी डोंट गिव इट अ ब्रेक। आप कर रहे हो कंटिन्यूसली करो, अपनी मंथली सेविंग्स या अर्निंग्स निकालो, 10% स्ट्रेट अपने हाथ से निकाल के दे दो। 100 दिनार कमाया है ना आपने, 10 दिनार निकाल के स्ट्रेट दे दो। यानी इसको एक अपनी हैबिट बना लें, अपने हाथ से देखते हुए आप सदका करते जाएं। दिस इज समथिंग दैट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जो तरीके हैं ना कि अपने डिपेंडेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने गरीब रिश्तेदार, कमज़ोर तबका, हमारे जो फॉर एग्जांपल पीपल हु आर सर्विंग अस, हमारे खद्दामा, हमारे क्लीनर्स, हमारे ड्राइवर्स, रास्ते में चलते हुए लोग, छोड़ दें पैसे, बार्गेन ना करें लोगों के साथ। जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मत करें बार्गेन। हम जो ये चिंदीगिरी करते हैं ना, ये छोड़ दें, हमारा दिल वसी करें, गनी करें। रास्ते पे जो लोग बेच रहे हैं, कुछ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई होम सर्विसेज दे रहा है, उसको थोड़ा ऊपर से पैसे दे दें, कुछ नहीं आपको कमी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह का वादा है कि आपके खजाने इंशाल्लाह डबल हो जाएंगे जब आप अल्लाह की राह में देंगे। मत करें ये कंजूसी गिरी, अपने दिल को ना ये कंजूसी के पिंजरे से फारिग करें, आज़ाद हो जाएं। क्योंकि जब हम ये काम करने शुरू करेंगे ना, यकीन जाने इंशाल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब में कमी आ जाएगी, क्या हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यानी हमारा हिसाब किताब जो है वो कड़ा नहीं होगा। हमने अल्लाह की खातिर अपने बेस्ट चीज़ों को दिया है ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा या रब। लेकिन हमें अपनी हयाती में, अपने होशो आवास में ये सारे काम करने। और जब आप ये काम करो तो अपने डिपेंडेंट्स, अपने बच्चों को भी इस चीज़ की ताकीद करो, अभी से उनको आदत डालो कि उनका हाथ भी देने वाला हो। उनके अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे टॉयज जो हैं, फटे पुराने टूटे नहीं, ये कंसेप्ट खत्म करना है अभी। जो आप अपने लिए सिलेक्ट करते हैं वो ही औरों के लिए सिलेक्ट करना है। उनके हाथ से उनके अच्छे टॉयज वक्फ करवा दें, डोनेट करवा दें, उनके कपड़े, उनकी चीजें। गिव देम द हैबिट ऑफ शेयरिंग, टीच देम हाउ टू डू द चैरिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर बार उनके हाथों से सदका करवाएं। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए ना, देन वी आर रियली डूइंग अवर जॉब। अच्छी तरबिया, एंड हमारा दिल भी ना जो ये दुनियावी चीज़ों से ख़त्म धीरे धीरे फारिग होगा। ये ब्रांड्स, ये अपडेशन और फैशन क्या चल रहा है, और ओरिजिनल एंड फर्स्ट कॉपी ना थर्ड कॉपी एंड ऑल दैट, बिलीव मी, राइज अबाउट ऑल दिस। अभी इट्स टाइम नाउ, राइज अबाउट ऑल दिस। मैं अक्सर कहती हूँ कफन का कोई ब्रांड नहीं है, थिंक अबाउट इट। और अभी अपने होशो आवास में अपने लिए सवाब जारिया का इंतज़ाम करते जाएं, सवाब जारिया का इंतज़ाम करते जाएं। यू विल बी सो रिलैक्स्ड, बिकॉज इंशाल्लाह आई होप बिइज़्निल्लाह या रब कि हमारे बच्चे हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें, अच्छी अच्छी नेकियां करें, बट डोंट रिलाई ऑन दैट। अपनी हयाती में करके जाएं, ताकि आप जो हैं तसल्ली बख्श होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला को वो वाली नेकियां कबूल है जो आप मुसलसल कर रहे हैं, जो आप छोटी छोटी हर रोज़ कर रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और आप अपना बेस्ट हिस्सा दे रहे हैं। लुक एट उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले कहाँ से 200 से शुरू किए और 900 पे ख़त्म हुए। 900 कैमल्स, 100 हॉर्सेस, एंड चैरिटी मनी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। क्यों? उन्हें नहीं चाहिए लग्जरी, but this is their state of iman. They know exactly where are they investing. They are the best businessmen, I say, because they know exactly where they are investing. वो अपनी आखिरा खरीद रहे हैं, वो अपने अल्लाह को राजी करके जन्नत खरीद रहे हैं। So this is one of the best things I can feel कि आज का हमारा लेसन के लिए ये एक अच्छा टेक होम मैसेज है। Abdul Rahman bin Auf radiallahu anhu for his part donated 200 ounces of silver, whereas Abu Bakr radiallahu anhu donated all his wealth, leaving for himself and his family nothing but Allah and his messenger. यानी सुभान अल्लाह, आप देखें अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु always had the cutting edge over others. तो इस बार भी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने पूरी अपनी वेल्थ वक्फ कर दी, पूरी की पूरी, सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान बिन औफ ने क्या किया? उन्होंने 200 ounces of silver दिया। Umar donated half his wealth, while Al-Abbas donated a lot of money. Umar radiallahu anhu ने half दिया और
अल अब्बास ने क्या किया, बहुत सारा पैसा दिया. तलहा, साद बिन उबैदा एंड मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हुमा आल्सो डोनेटेड मनी फॉर द एक्सपेडिशन. उन्होंने पैसे दिए. तलहा, साद बिन उबैदा और मोहम्मद बिन मसलमा. आसिम बिन आदि रदियल्लाहु अन्हु ऑफर्ड 90 कैमल बर्डन्स ऑफ डेट्स, यानी 90 कैमल के वजन के हिसाब से खजूरें आसिम बिन आदि रदियल्लाहु अन्हु ने दिया. पीपल रेज टू डोनेट एज लिटिल और एज मच एज दे कुड, थोड़े से थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा, जिसकी जैसी इस्तेताअत थी उन्होंने दिया. One of them gave only a half a kilo of dates or the only kilo, यानी 1 किलो खजूरें भी उन लोगों ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया. Women also competed by giving the things they owned such as musk, armlets, anklets, earrings and rings. औरतें भी माशाल्लाह पीछे नहीं रहीं. उनके पास जो भी था, किसी ने मश्क दिया, किसी ने आमलेट्स दिया, जैसे कि अपने उनके बैंगल्स, ज्वेलरीज, इयररिंग्स, रिंग्स, जो भी उनके पास एक्सपेंसिव आइटम्स थी उन्होंने दी. Subhanallah. इसके रेफरेंस में there is a Quranic verse from Surah 9 verse number 79. Those who defame such of the believers who give charity in Allah's cause voluntarily, and those who could not find to give charity in Allah's cause except what is available to them, so they mock at them, believers. यानी लोग जो है ना, Subhanallah, जो दीन पर है उन्हें पता है इसकी कदर मंजर क्या है, और जो दीन पर नहीं है वो सिर्फ पीछे खड़े होकर मजाक उड़ा रहे होंगे या एक दूसरे को बिलिटल कर रहे होंगे, मगर इससे जो ईमान वाले हैं उनके इरादे पस्त नहीं होते. That is why istiqamat is very very important, and every time I keep reminding you people that the moment आप इस्लाम का राह पकड़ोगे ना, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको दीन पे चलने से रोकेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको डिस्करेज करेंगे. लेकिन जिसने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पकड़ा, उसे इन चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए. आपके पास अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है. That's it. The Muslim army leaves for Tabuk. After the completion of the equipment of the army, Allah's Messenger appointed Muhammad bin Maslama al-Ansari radiallahu anhu over Medina. In another version, it was Siba bin Urfuta radiallahu anhu. अभी निकल रही है आर्मी, तो एज यूजुअल जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंचार्ज रखते हैं मदीना में, तो एक नरेशन में है मोहम्मद बिन मसलमा अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु को रखा, और दूसरे नरेशन में ये है कि सिबा बिन उर्फुता रदियल्लाहु अन्हु को रखा इंचार्ज. ही एंट्रस्टेड द अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड द सेफ्टी टू अली बिन अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु. और दूसरे जो फैमिली अफेयर्स और सेफ्टी थी, प्रोटेक्शन, उनकी उन्होंने बागडोर अली बिन अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु को दी, ऑर्डरिंग हिम टू स्टे विद देम. उनको कहा गया था कि इनके साथ रहें. This move made the hypocrites undervalue Ali radiallahu anhu, so he followed Allah's messenger and caught up with him. अभी जो है मुनाफिक जो थे वो इस चीज़ को ना, जैसे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को घर वालों के इंचार्ज के लिए, सिक्योरिटी के लिए पीछे रखा, तो मुनाफिक जो थे उसमें इसको वो लोग क्या कर रहे थे कि हज़रत अली को अंडर वैल्यू कर रहे थे कि यानी ये काबिल नहीं है शायद फाइट के लिए, तो उनको पीछे रख के जा रहे हैं. So he followed Allah's messenger and caught up with him. तो उन्होंने क्या किया, वो अली रदियल्लाहु अन्हु जो है वो भी पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. But the Prophet made Ali radiallahu anhu return to Medina, saying, "Would it not suffice you to be my successor in the way that Harun was to Moses?" Then he said, "But no prophet will succeed me." अभी मुनाफिक जो है वो अपना जो कहते हैं ना फितने फसाद करने वाले काम तो कर ही रहे. उधर से उन्होंने उनको हजरत अली के दिल में ये फीलिंग डाल दी कि आपको अंडर वैल्यू किया जा रहा है. तो हजरत अली जो है वो कैचअप करने के लिए निकले कि वो भी जंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लौटा दिया. उन्होंने कहा कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए थे तो उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को पीछे रखा था, तो कहते हैं आपके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं इस तरीके से आपको मेरा एक सक्सेसर बना के छोड़कर जा रहा हूँ. बट ही सेड दैट नो प्रॉफिट विल सक्सीड मी, यानी जो कोई भी नबी है वो उनको सक्सीड नहीं कर सकता. अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च नॉर्थवर्ड्स टू तबुक ऑन अ थर्सडे के दिन वो तबुक में पहुंचे, north of Tabuk में पहुंचे. The army numbered 30,000 fighters, which was a great one when compared to the previous Islamic armies. The Muslims had never marched out in such great numbers before. Alhamdulillah, 30,000 fighters थे, और इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले की फाइट्स में कभी भी नहीं इकट्ठे हुए थे. Despite all the donations of wealth and mounts, the army was still not perfectly equipped. इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माल और ये सब मिलने के बावजूद पूरी तरह से completely जो थी वो आर्मी जो थी वो equipped नहीं थी.
The shortage of provisions and mounts was so serious that 18 men would alternatively ride one mount. यानी इतनी कमी थी सवारियों की कि एक सवारी के लिए 18 लोग वेटिंग लिस्ट में थे. यानी एक बंदा उस पर सवार होगा तो 17 वेट करेंगे और 17 खत्म होंगे फिर वो पहले वाले का टर्न आएगा. यानी इतनी किल्लत थी. Concerning provisions, at times members of the army had to eat the leaves of the tree until their lips became swollen. यानी खाने पीने का जो बेसिक इंतजाम था वो भी बहुत कम था. इतना कम था कि लोग जो हैं पत्तियां खाकर अपना गुजारा कर रहे थे और वो पत्तियां खाते खाते उनके लिप्स जो हैं वो swollen हो जाते थे. Others slaughtered their camels, though they were dear to them. This is why the army was called the army of the distress. अभी इतनी ज्यादा कमी होती थी कि वो लोग अपने फेवरेट कैमल्स जो उनके पेट्स थे या जो उनके जानवर थे फेवरेट उनको ज़िबा करके खाने का इंतजाम कर रहे थे और इसीलिए इस आर्मी को जो टाइटल मिला था वो था द आर्मी ऑफ डिस्ट्रेस. यानी थोड़ी स्ट्रेस में गम के उसमें थोड़ी माहौल में थी. On their way to Tabuk, the Islamic army passed by Al-Hijr, which was where the people of Thamud, who cut out huge rocks in the valley, had dwelt. Today it is called the Valley of Al-Qura. इसमें से उन लोग कहाँ से गुजरे? अल-हिजर से गुजरे, जहाँ पर थामूद के जो लोग थे वो लोग जो है ह्यूज रॉक्स में से कट करते थे वैली, और आज इसका नाम क्या है? वैली ऑफ अल-कुरा. They took water from its well, but Allah's messenger forbade them to drink or perform ablution with it. Concerning the dough they knead with it, he told them to feed their camels with. He forbade them to eat anything whatsoever of it. As an alternative, he told them to obtain water from the well, which the she-camel of Prophet Saleh would drink from. अभी इधर एक well थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उस कुएं के पानी को ना पीने के लिए अलाउ किया ना वजू करने के लिए अलाउ किया. अभी उस पानी से जो आटा गूंदा गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने कैमल को वो खिला दो. उन्होंने उनको बिल्कुल मना किया ये क्या वेल के पानी को इस्तेमाल करने के लिए. इसके बदले उन्होंने कहा कि वो वाली वेल जहां पर सालेह अलैहिस्सलाम की शी कैमल जहां से पानी पीती थी उधर से आप जाके पानी यूज कर सकते हो. Now what could be the probable reason for that? Because वहाँ पर अल्लाह का अजाब आया था, तो वो जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. वहाँ पर जो उस वक्त उस जगह में मौजूद रिसोर्सेज हैं उसको यूज करने के लिए मना किया है. On the authority of Ibn Umar, who said that upon passing by Al-Hijr, the Prophet said, "Do not enter the houses of those who wronged themselves, lest what had happened to them would afflict you. But if you had to do such a thing, let it be associated with weeping." यानी वही रीजन जो मैं आपको बता रही थी कि उन लोगों के घरों में आप दाखिल मत हो जिन्होंने गलतियां की और अल्लाह का अजाब उन्होंने झेला. ऐसा ना हो कि आपको भी उसके कुछ असरात महसूस करने पड़े. बल्कि यहाँ पर करने वाला काम यही है कि आप यानी उनके ऊपर जो गुजरी है उसका सोच करके भाई अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमें सही राह पे रखे, वो सोच के अल्लाह ताला से इस्तगफार करके आप रो. Then he raised his head up and accelerated his strides till he passed the valley out. A shortage of water and the army's need for it caused them to complain to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam about it. So he supplicated to Allah, who set a rain cloud. It rained, and so all people drank and fulfilled their need for water. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और जिस तरीके से शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, आर्मी की नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लेन की. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? द मोस्ट important task that he keeps doing every now and then, उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ की. दुआ करते ही वहां पर रेन क्लाउड आ गए और बारिश हुई और लोगों ने खूब पानी पिया और फुलफिल किया अपनी हाजतें. When they drew near Tabuk, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If Allah wills, tomorrow you will arrive at the spring of Tabuk. You will not get there before daytime. So whoever reaches it should not touch its water, but should wait until I arrive." अब जब वो तबुक के करीब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो हम लोग कल सुबह में स्प्रिंग ऑफ तबुक को पहुंचेंगे बिफोर डे टाइम, और जो भी उधर पहुंचेगा उधर के पानी को टच नहीं करना, लेकिन जब तक मैं अराइव ना करूं मेरा वेट करना. Muad radhiyallahu anhu said, "When we reached the spring, it gushed forth some water. We found that 2 men had already preceded us to it. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked them, 'Did you touch its water?' They replied, 'Yes.' He said what Allah inspired him to say. Then he scooped up a little water of that spring, a thin stream which gathered together. He washed his face and hand with it and poured it back into it. Consequently, plenty of water spouted out of it so that the people could have the water. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, 'Muad, if you live long life, you will see fields of vegetation there.'" यानी here vegetation here. Okay. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा था कि अगर आप उधर मुझसे पहले पहुंच जाओ तो पानी को टच मत करना. अब जब
मुआद रदियल्लाहु अन्हु बयान कर रहे हैं कि वहां पर पहुंचे तो 2 आदमी ऑलरेडी उधर आगे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या तुमने वाटर को टच किया? उन्होंने कहा हाँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्पिरेशन वही आई थी अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने स्कूप किया थोड़ा पानी अपनी मुट्ठी, मतलब जैसे पाम में लिया, और फिर उसके बाद अपना फेस उससे धोया, हाथ धोए और अपने बैक पे थोड़ा वो पानी डाला। अब वो जो थिन स्ट्रीम थी ना, वो सडनली प्लेंटी हो गई, बहुत ज्यादा पानी उसमें से गश होने लगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुमको तुम्हारी लंबी जिंदगी हुई तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा नबातात वेजिटेशन देखोगे। ऑन द वे टू, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से अल्लाह की तरफ से इंस्पिरेशन आती थी, दैट वुड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ टुडे एंड फ्यूचर, कुछ गैब की फ्यूचर की न्यूज भी अल्लाह ताला उनको बताते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबी या जिन लोगों को बताना होता था उनके साथ वो शेयर किया करते थे। On the way to Tabuk, or as soon as they reached Tabuk, Allah's messenger said, severe wind will blow tonight, so none of you should stand up. Whoever has a camel should tie it. Later on, when the strong wind blew, one of the men stood up and the wind carried him away to the mountain of Tai mountain. अभी again जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्पिरेशंस आती थी अल्लाह की तरफ से, जितनी इन्फॉर्मेशन आती थी उतनी ही आती थी। इनफैक्ट ये सारी हदीसें हम लोगों को एक और एक चीज बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जितनी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन पे जाहिर की थी। लेकिन वो लोग जो कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनको गैब का इल्म था और ये था और वो था, दिस इज टोटली रिफ्यूटिंग। ये इस चीज के अगेंस्ट में आपको दलीलें मिलती हैं कि उतनी ही इंफॉर्मेशन उनके पास थी जितनी अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन पे जाहिर करते थे। सो ही डिडंट हैव एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और वो भी जाहिर करके कितने और किसको देनी है वो भी उनको गाइड किया जाता था। नॉट एवरीवन वाज अलाउड टू नो व्हाट इज हैपनिंग। अभी जैसे इस केस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया गया था कि सीवियर विंड आएगी और जो लोग हैं उनको बैठे रहना चाहिए, अपने कैमल्स को टाई करके रखना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी आर्मी को कि आप लोगों को बहुत ये स्ट्रांग विंड ब्लो होगी तो आपने स्टैंड नहीं करना है, अपने कैमल्स को बांध के रखना है। जब स्ट्रांग विंड ब्लो हुई, एक आदमी जो खड़ा हुआ तो उसको विंड ले जाके कहा माउंटेन ऑफ ताई पे जाके उसको, यानी वो उधर उड़ गया वो। अब आप देखिए सुभान अल्लाह, अनदर लेसन फॉर अस। चंद लोग हम लोगों में होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। इफ यू हैव अ लीडर, इफ यू हैव अ मदर और पेरेंट और अ टीचर और समबडी, आपका इफ यू आर इन व्हाट डू यू कॉल, आप अपने ही कोई ट्रैक पे जा रहे हो या कोई पिकनिक एक्सकर्शंस पे जा रहे हो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जहां कहीं भी आप जाते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट क्या कह रही है, अथॉरिटीज क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, यू विल हैव अ लीडर, यू विल हैव एन आमिर, लिसन टू द आमिर, बी ओबीडियंट। ओबीडियंस में बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सुकून है। बट चंद लोग ऐसे जरूर नहीं मिलेंगे आपको जिन्हें मजा आता है रूल्स तोड़ने में। बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप अपने आप को कहते हैं ना यू आर अ बिलीवर, यू आर अ मुस्लिम, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स अनलेस इट इज क्लैशिंग विद अल्लाह's कमांड। आपको उन चीजों को फॉलो करना है जो अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स को क्लैश नहीं करती। उसके अलावा आपको पूरी तरह से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फेथ। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें रूल्स तोड़ने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो नुकसान उठाएंगे, वो अपने आप को तकलीफ में डालेंगे, वो अपने डिपेंडेंट्स को तकलीफ में डालेंगे, लेकिन वो करेंगे उल्टा काम ही। इस चीज से भी हमें हमेशा बचना है। तो अगर इफ यू आर वन ऑफ दोज जो कि रूल्स तोड़ने में बहुत प्राइड फील करते हैं, लेट मी टेल यू, you are not only doing a civilian crime but you are also doing something which is against Islam. हमारे सामने एग्जाम्पल अभी इसमें आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि विंड ब्लो होगी, कोई खड़ा ना रहे, अपने कैमल्स को बांध के रखे। एक जो शाना है वो उठा और वो उड़ता हुआ टाई माउंटेन के पास पहुंच गया। सुभान अल्लाह। During the entire journey, Allah's messenger combined the Zuhr and Asr as well as Maghrib and Isha prayer. अभी एंटायर जर्नी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, जमा किए ज़ोहर और असर की सलाह और मगरिब और ईशा की सलाह। The army of Islam at Tabuk. Upon arriving at Tabuk, the Muslim army camped there ready to face the enemy. There, Allah's messenger delivered an eloquent speech that included the best words. In his speech, he urged the Muslims to seek the welfare of this world and the world to come. He warned them and gave them good tidings. By doing so, he encouraged those whose spirits were broken and blocked any means of suffering from a lack of supplies, food, and other substances. अभी तबुक में अराइव कर गई मुस्लिम आर्मी, उधर उन्होंने कैंप किया, अपने दुश्मनों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक खूबसूरत सी स्पीच थी बेहतरीन अल्फाजों में। उन्होंने कहा
कि इस दुनिया की जो खैर है, वेलफेयर है, उसको सीख करो और उसके आगे भी जो आने वाला है उसमें खैर सीख करो। उन्होंने उनको वार्निंग भी दी और उनको गुड न्यूज़ भी दी और उनको इनकरेज किया। जिनकी जो हिम्मत थी, ब्रेक हो रही थी, उनको हिम्मत दिया कि आपके पास जो भी मुश्किलात आ रही हैं, मसलन खाना नहीं है, सब्सटेंसेस मटेरियल नहीं है, रोज़मर्रा की नेसेसिटीज़ नहीं है, बट दैट इज़ ऑल ओके, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। Upon learning of the march of the Muslim army, the Byzantines and their allies became so terrified that they dared set out to fight against them. अभी दुश्मनी आर्मी को पता चल गया कि मुस्लिम आर्मी आ चुकी है, उसने अपना पड़ाव डाल दिया है, वो तैयार है लड़ने के लिए। तो बाइजेंटाइन, हालांकि इतने ह्यूज नंबर थे, फुल्ली इक्विप्ड थे, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने खौफ तारी कर दिया। On the contrary, they scattered within their territory. वो अपनी ही टेरिटरी में तितर बितर होने लगे. This gave a good reputation to the Muslim force, which gained a strong military reputation in the mid and remote areas of the Arabian Peninsula. अभी इस्तेकामत और हिम्मत किसकी नजर आ रही है? मुसलमान आर्मी की। वो पहुंच गई है, वो तैयार है फेस करने के लिए। अब बाइजेंटाइंस की जो आर्मी है विद देयर अलाइज, वो तितर बितर हो रही है। अब इसकी खबर पहुंची है अरेबियन पेनिनसुला में और ये मुस्लिम आर्मी में भी, तो इनके इरादे और स्ट्रांग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मतें और सोर कर गई और अरेबियन पेनिनसुला में मुसलमान आर्मी की इमेज और ज्यादा बढ़ गई। The political gains that the Muslim forces obtained far exceeded anything that they could have acquired in the two armies had engaged in military confrontation. अब इसमें जो political gains था वो मुस्लिम आर्मी के फेवर में आया। इसका फायदा इतना अनगिनत हुआ मुसलमान आर्मी को, जो कि एक्चुअल फाइटिंग में फायदा नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा पॉलिटिकल गेन मुसलमान फोर्सेस को मिला। The head of the tribe of Ayla, Yohanna bin Robah, came to Allah's Messenger ﷺ and made peace with him and paid him the head tax al-jizya. Both the people from Jarba and Adruh also paid him head tax. Allah's Messenger ﷺ gave each a letter of guarantee similar to the one given to Yohanna. अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट अलाइज थे ना, जो ज्वाइन कर रहे थे बाइजेंटाइंस को, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अब फायदा नहीं है जंग और कुछ करने का, जाके सुलह करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और जिजिया पे करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाते हैं। तो ये कौन सी ट्राइब थी? ट्राइब ऑफ आयला। और यूहाना बिन रोबा आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की और जिजिया भी पे किया। फिर जरबा और अद्रुह के लोग भी आए, उन्होंने भी जिजिया पे किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लेटर ऑफ गारंटी दिया। ये लेटर ऑफ गारंटी इज लाइक प्रोटेक्शन टू देम दैट दे विल कंटिन्यू पेइंग द जिजिया और इनके ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अब ये जो लेटर था यूहाना को, उसमें क्या लिखा हुआ था? In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. This is a guarantee of protection from Allah and Prophet Muhammad, the messenger of Allah, to Yohanna bin Robah and the people of Ayla. Their ships and their caravans on land and sea will have the full custody of Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He and whosoever are with him of the people of Asham and those of the sea. यानी इनके जो कारवान चलेंगे, इनकी जो शिप्स चलेगी लैंड पे और सी पे, जो इनके कारवान्स चलेंगे, उसको पूरी कस्टडी यानी उसकी पूरी प्रोटेक्शन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं। यानी इनके साथ जो अशाम के लोग हैं ऑन द सी, उनके लिए भी ये लागू था। Whosoever contravenes this treaty, his wealth shall not save him. It shall be fair price of him that takes it. It is unlawful to hinder any of the people from any spring which they have been in the habit of frequenting, or from any journeys they desire to make, whether by sea or by land. यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस ट्रीटी को कैंसिल किया जाए या कोई इसके साथ फ्रॉड करे। इनकी वेल्थ सब कुछ जो है, यानी कोई अगर इसको चीट करना चाहे या इस कोवेनेंट को ब्रेक करना चाहे तो उनके माल उनकी बचत नहीं करेंगे, देन दे विल बी डेल्ट सीरियसली। और जब इनके कारवान्स चलते हैं तो दे कैन टेक, यानी पानी, रिसोर्सेज, स्प्रिंग, जो भी चीज़ बीच में लगेगी उनके यूज़ के मुताबिक ये फ्री है इस्तेमाल करने के लिए, चाहे फिर वो सी में से जाए या लैंड में से जाए। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu at the head of 450 horsemen to Uqaydir, the chief of Dumatul Jandal, saying to him, "You will see him hunting wild cattle." अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हेड बना के 450 हॉर्समैन के साथ उकैदिर में पहुंचाया और वहां पर जो चीफ थे दुमातुल जंदल, वो कह रहे थे कि आपको वो मिलेंगे हंटिंग करते हुए, वाइल्ड कैटल की हंटिंग करते हुए। When Khalid radhiyallahu anhu drew within the sight of his castle, he saw the wild cattle coming out, rubbing their horns against the castle gate. As it was a moonlight
moonlit night, Khalid radiallahu anhu could see Uqaydir coming out to hunt them. He captured him even though he was surrounded by his men and brought him back to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who spared his life and made peace with him for the payment of 2,000 camels, 800 heads of cattle, 400 coats of armor and 400 lances. अभी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा पूरे उनको टिप्स देकर कि आपको मिलेंगे उकैदिर जो कि वाइल्ड कैटल का हंटिंग कर रहे होंगे, तो जब खालिद रदियल्लाहु अन्हु उनके कैसल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो वाइल्ड कैटल जो है वो अपने सिंग जो है एक दूसरे के साथ रब करते हुए भाग रहे हैं कैसल गेट के पास, तो उन्होंने देखा कि उकैदिर जो है वो उनको हंट कर रहा है। अभी खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कैप्चर किया, इवन दो उनके आदमी उनको सराउंडेड थे, बट स्टिल उन्होंने उनको कैप्चर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान को बख्श दी, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या लिया? 2000 कैमल, 800 हेड ऑफ कैटल, 400 कोट ऑफ आर्मर एंड 400 लैंसेस। उनसे यानी जो सिक्योरिटी का जो माल लेना था उन्होंने उनसे ले लिया। He obliged him to recognize the duty of paying the tribute and charged him with collecting it from Dumat, Tabuk, Ayla and Taima. फिर उनको बताया कि ये जो ड्यूटी ऑफ पेइंग द ट्रिब्यूट है वो चार्ज कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो जिजिया है वो लेना पड़ेगा, और उनको एग्जांपल्स दिया दुमात, ताबुक, आयला और ताइमा का, कि जो ट्राइब्स थे वो भी यही चीज फॉलो कर रहे थे। The tribes who were previously allied with the Byzantines became quite certain that the dependence on their former masters was coming to an end. अब जिस तरीके से आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 अलाइज जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाथ मिला चुके थे, तो जो बचे कुछ ट्राइब्स थे जो बाइजेंटाइंस के साथ ज्वाइन थे उनको भी इस चीज का अंदाजा लग गया था कि अब जो है बाइजेंटाइन के पास उनकी जो दोस्ती है वो कोई काम नहीं आने वाली। Therefore, they turned to becoming supporters of the Muslims. अब वो धीरे धीरे मुसलमान की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। The Islamic State therefore expanded its border to such an extent that it now touched the Byzantine borders. So we see that the Byzantine agent's role was over. Subhanallah. अभी मुसलमान नेशन की जो पहुंच थी वो बाइजेंटाइन के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे बाइजेंटाइन के अलाइज जो हैं वो धीरे धीरे मुसलमान आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे, मुसलमान नेशन को ज्वाइन कर रहे थे, तो उनकी जो है ताकत धीरे धीरे क्रम्बल होती नजर आ रही थी। Returning to Medina, the Muslim army returned from Tabuk victorious without being deceived or wronged, because Allah subhanahu wa ta'ala had sufficed them from the evils of fighting. अब आप देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके का इंतजाम किया। हालांकि जंग के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे, उनके पास भले इतने उज़र नहीं थे, कम थी माल और कम थे इक्विपमेंट्स और कम थे जानवर और प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन वो निकल पड़े थे अल्लाह की खातिर, और वो उनका इरादे पूरे पूरे पक्के हो गए थे और वो उधर पहुंचे, उन्होंने एक्शन लिया अपनी तरफ से। हालांकि ब्लडी जंग नहीं हुई, जंग जैसी होती है वैसी जंग नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी। अब आप देखिए इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुक्ता है, कई बार वी माइट नॉट फील कि हम लोग जो है ना जो मकसद हासिल करना चाहते हैं इन अ फिजिकल सेंस हमको वो मकसद हासिल हुआ है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरलाइंग हमारे लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी होती है, उसके पीछे खैर रखा होता है। आप देखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो हमारी नियतों को टटोल रहे होते हैं कि मौका ए वारदात पर हमारी कैफियत क्या होती है, कहाँ पर हमारा दिल डोलता है, कहाँ पर हम अपना पूरा 100% अल्लाह की खातिर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, अल्लाह को हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इन सब चीज़ों से बेनियाज है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लोगों को टटोलते हैं कि हमारा दिल क्या करता है, क्या अल्लाह की खातिर हम हमारे बेस्ट चीज़ें देने को तैयार है, क्या हम अल्लाह की खातिर अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। जब अल्लाह ताला को इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है, दैट इज़ इट, वहां पर हमारी कामयाबी छुपी है, और वहीं पर हम देखते हैं कि बिना जंग हुए फतेह कैसी होती है। दिस इज द ग्रैंड एग्जांपल ऑफ दैट कि बिना ब्लडी फाइट हुए मुसलमान की ताकत, उसकी जो पहुंच है, कहाँ तक पहुंच गए। एंड सुभान अल्लाह, स्लोली 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 वी आर एक्सपैंडिंग टू नो लिमिट्स। On his way back, while traveling on a mountain pass, 12 hypocrites tried to assassinate the Prophet, and the only ones with him at that time were Ammar, who was holding the reins of his she-camel, and Hudayfa bin al-Yaman, radiallahu anhu, who was driving it. The remaining people at that time had already gone down to the bottom of the valley. वापसी में there was a pass, वहां पर 12
मुनाफिक जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहे थे। उस वक्त उनके पास सिर्फ अम्मार रदियल्लाहु अन्हु थे जो उनके शी कैमल की क्या कहते हैं उसको रेंस जो है लगाम को पकड़े हुए थे, और हुदैफा बिन अल यमान रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो उसको ड्राइव कर रहे थे, और दूसरे लोग जो थे वो सारे वैली के नीचे उतर गए थे। The hypocrite seized on that opportunity to assassinate the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As Allah's messenger and his two companions were moving along, they heard thrust of people coming towards them from behind with their faces covered. अभी मुनाफिकों को ये एक मौका मिल गया क्योंकि उनके साथ सिर्फ 2 सहाबाज थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और बाकी सब उतर गए थे। तो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि हमें आवाज सुनाई दी कि पीछे से कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने अपने फेसेस को कवर किए हुए थे। Hudayfa radiallahu anhu was sent by the Prophet to see what was going on. He saw them and stroked the faces of their mounts with a crook in his hand, and Allah cast fear into their hearts. They fled away and caught up with their people. However, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam informed him of their names and intention. So that was why Hudayfa radiallahu anhu was called the confidant of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. यानी ये लोग 12 थे, ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2 सहाबा 3 थे, काफी गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा थे। अब ये अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इनके दिलों में खौफ तारी कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि क्या हो रहा है वो देख कर आओ। उन्होंने उनको देखा और उनके फेसेस को और उनके सवारियों को मारा, और उनके दिल में जो है क्योंकि अल्लाह ताला ने खौफ डाल दिया था वो भाग खड़े हुए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम जो है और उनके इरादे जो हैं वो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए उनको टाइटल मिला कॉन्फिडेंट ऑफ अल्लाह's मैसेंजर। एंड अल्लाह ताला इस सिलसिले में कौन सी वही नाजिल करते हैं? सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 74, एंड दे रिजॉल्व दैट प्लॉट टू मर्डर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हिच दे वर अनेबल टू कैरी आउट। अब देखिए कितने भी मंसूबे, कितने भी इरादे, कितनी भी कोशिशें, कितनी भी तादाद होने दो, जब अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं है तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो सुभान अल्लाह, भाग खड़े हुए। When Medina began to appear, I think it's about time we should close here. कोई सवाल है आज के सेशन को लेके, या अदरवाइज प्लीज ओपन योर माइक्स एंड वी कैन डिस्कस इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर नसरीन। जी सिस्टर। जी ये मैं वो ग्रामर के टाइमिंग्स पूछना था आपसे और थिंकिंग। सॉरी आई कांट हियर यू, मुझे क्लियरली नहीं समझ आया आपकी बात। नहीं, ये जो ग्रामर के क्लासेस शुरू होने वाले हैं ये क्या टाइम पे होंगे? मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग इंशाल्लाह आवर्स? आपको अनाउंस करेंगे अफशान, वी आर गोइंग टू अनाउंस इट वेरी सून। हाँ इंशाल्लाह। आज तफसीर की क्लास है? अभी तक तो कोई मेरे ख्याल से आया नहीं है ना, मैसेज के नहीं है। वही मस्कत में भी छुट्टी है, वही 3 दिन का मॉर्निंग वो दिए हुए हैं, छुट्टी दिए हुए हैं, हाँ तो बस सारे ये, बस ये है कि मैसेज नहीं आया है तो फिर होगी इंशाल्लाह। ओके ओके, ठीक है ना, जज़ाकल्लाह खैर। चलें इंशाल्लाह। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।